Good morning everyone. Today we are going to solve remaining questions of exercise 20A. Look into your book on page number 164. Question number 6 is, this pictograph shows the sales of two fruit sellers on a certain day. Each fruit stands for 5 kg. Now here in this pictograph, two fruit sellers कौन है? सुनीति and नकुल. इन्होंने कुछ फ्रूट्स को सेल किया था and here it is shown वन फ्रूट स्टैंड फॉर 5 kg. जो ये वन फ्रूट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 kg. उनका वेट रिप्रेजेंट कर रहा है. वन फ्रूट का कितना वेट है? 5 kg. सो अकॉर्डिंग टू दिस एप्पल्स जो है, नंबर ऑफ एप्पल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एप्पल्स आर देयर? 1 2 3 4 5 एंड 6. सो 6 एप्पल्स का वेट कितना हो जाएगा? 30 kg. For 3 pears, it will be 15 kg. For 3 oranges, it will be 15 kg. And here, in this section, number of apples are 1, 2, 3, 4, 5. So, according to this, 5 apples का जो weight होगा, that will be 25 kg. 3 pears का weight 15 kg. And 1, 2, 3, 4, 5. 5 oranges का भी weight क्या हो जाएगा? 25 kg. Suniti sold 12 fruits and Nakul sold 13 fruits. Now there are some questions given that we have to answer. First is, who sold more apples by weight and how much more? अब किसने weight के according सबसे ज़्यादा apples को sell किया है? So कौन है जिसने सबसे ज़्यादा apple को sell किया है? So यहाँ सुनीति के number of apples कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and here 1, 2, 3, 4, 5. So नकुल के कम है, सुनीति के ज्यादा है. तो सुनीति ने बाय वेट भी क्या किया? इसका 30 kg आ रहा था और इसका 25 kg. सो द आंसर इज सुनीति. एंड हाउ मच मोर? हाउ मच मोर के लिए आप क्या करेंगे? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 25 बाय 30. सो द आंसर इज 5 kg. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया? 5 kg. सेकेंड इज, हु सोल्ड मोर फ्रूट एंड हाउ मच मोर? अब हमें यह बताना है कि किसने सबसे ज्यादा फ्रूट्स को सेल किया था. सो फ्रूट्स, नंबर ऑफ फ्रूट जो है सुनीति के 12 है एंड नकुल के कितने हैं? 13. सो किसने सबसे ज्यादा फ्रूट को सेल किया है? नकुल ने किया है. और अगर हमें इनका वेट बताना है कि वेट किसका किससे ज्यादा है फ्रूट्स का, सो वी हैव टू फाइंड टोटल वेट ऑफ दीज फ्रूट्स फॉर सुनीति एंड फॉर नकुल. Now see, total weight of fruits for Suniti is 60 kg and for Nakul it is 65 kg. Now we have to find the difference between these two. So 65 minus 60 is 5 kg. The answer is 5 kg. In C part, if each sells the same amount of fruit for 2 more days, what will be the difference between the amounts they sell at the end of the third day? अब ये कह रहा है कि अगर यही सेम अमाउंट 60 kg एंड 65 kg का उनके 2 मोर डेज और बढ़ जाता है, सो फॉर 3 डेज, थर्ड डे में जो उनका अमाउंट आता है एट द एंड, उसका डिफरेंस क्या होगा? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड फॉर 3 डेज टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स. सो ये हो जाएगा 60 प्लस 60 प्लस 60, इट विल बी 180. एंड फॉर दिस वन 65 प्लस 65 प्लस 65 फॉर 3 डेज, इट विल बी 195. And the difference between the weights will be 195 minus 180 is equals to 15 kg. That is the answer. Next, in question number 7, the bar graph shows the populations, number of people of 3 cities A, B and C in the years 2000 and 2010. Each square stands for 20 lakh people. यहाँ जो 1 स्क्वायर है, ये 1 स्क्वायर जो है यहाँ पे आ रहे हैं, दैट स्टैंड्स फॉर 20 लाख पीपल. और ये बार ग्राफ जो है ये क्या शो कर रहा है? पॉपुलेशन शो कर रहा है सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी की इन ईयर 2000 एंड 2010. Now here some questions are given that we have to answer, but first of all you have to understand this bar graph. यहाँ इस बार ग्राफ में in this horizontal line cities are given and in this vertical line some numbers are given. Now these numbers are 20 lakh and here numbers are not given. So these numbers are stands for 40 lakh and 60 lakh. यहाँ क्या चल रही है? 2 की
टेबल चल रही है बट इन लैक्स. सो this first line shows 20 lakh, second line shows 40 lakh, third line will be 60 lakh, and fourth one is already given 80 lakh. Then it will be 1 करोड़. 80 lakh के बाद में जब हम after 20 lakh count करते हैं we'll get 1 करोड़. Next, after 1 crore, this line will show 1 crore 20 lakh. Then इसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, ये हाफ पोर्शन इसका दिया हुआ है. सो दिस हाफ पोर्शन विल शो 1 करोड़ 30 lakh और उसके ऊपर जो आएगा दैट विल बी 1 करोड़ 40 lakh. And then 1 crore 60 lakh is already given and after it will be 1 crore 80 lakh. Alright. Now first question is, which city had the highest population in 2000? How much was it? 2000 में, ईयर 2000 में हाईएस्ट पॉपुलेशन किस सिटी की है? सो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है इन 2000 ईयर? सिटी बी. एंड हाउ मच? इट इज 1 करोड़ 60 lakh. Okay, city B 1 crore 60 lakh. Second question is, what was the difference between the populations of city A and city B in 2000? So year 2000 में हमें difference बताना है between the populations of cities, city A and city B. इन दोनों के बीच का difference बताना है. So city B is 1 crore 60 lakh with the population and city A. अब city A की जो population है वो कितनी है? 1 crore 30 lakh. So population का difference निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Subtract. So the difference is 30 lakh. C part is, in which city did the population increase the most from 2000 to 2010? अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन से सिटी में पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है. इंक्रीज दैट मीन्स बढ़ी है. फ्रॉम 2000 ईयर से 2010 तक. सो नाउ सी, सिटी ए में भी ये इंक्रीज हो रही है. 2000 में ये इतनी थी एंड 2010 में ये इतनी हो गई. देन सिटी बी में भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का. सिटी सी में जो है उसमें भी इंक्रीज हो रहा है. बट द मोस्ट मीन्स सबसे ज्यादा इंक्रीज जो है वो कौन से सिटी में हुआ है? नाउ सी, सिटी ए में पहले कितनी थी? 1 करोड़ 30 lakh एंड 2010 में कितनी हो गई? 1 करोड़ 60 lakh. फॉर सिटी बी इसमें 1 करोड़ 60 lakh थी एंड सिटी बी 2010 में 1 करोड़ 80 lakh हुई. सो 20 lakh जो है वो इंक्रीज हुआ है. एंड सिटी ए में कितना हुआ है? 30 lakh का इंक्रीज हुआ है. देन इन सिटी सी में पहले 1 करोड़ 20 lakh था और देन 2010 में 1 करोड़ 40 lakh हो गया. तो इसमें भी 20 lakh का इंक्रीज हुआ है. सो सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में हुआ? 30 lakh का, सिटी ए. सो द आंसर इज सिटी ए 30 lakh. D part is, which two cities had the same increase in population in the 10 years? So 10 years यही है from 2000 to 2010. और अभी हमने फाइंड किया था सिटी ए का जो इंक्रीज हो रहा था वो 30 lakh हो रहा था. बट इन सिटी बी एंड सिटी सी देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20 lakh. So answer is city B and city C. You will write all these answers in your book. Now, question number 8 is, Arif's class formed 5 groups. Each group asked 20 families how they make sure that their drinking water is safe. Then the 5 groups put together their data and made this pie chart. अब आपको ये एक पाई चार्ट शो हो रहा है जिसमें हाफ पोर्शन जो है सर्कल का use water filter, this 1/4 part boil water and this 1/4 part is boil and use filter is showing. अब आरिफ की क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने 5 के ग्रुप्स बनाए. उन 5 ग्रुप्स ने क्या किया? 20 फैमिलीज को पूछा कि उनकी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सेफ है या नहीं है. सो 5 ग्रुप्स थे एंड ईच 5 ग्रुप्स आस्क्ड 20 फैमिलीज. सो हाउ मेनी टोटल फैमिलीज आर देयर? 5 ग्रुप्स थे एंड उन्होंने सबने 20 फैमिलीज को पूछा था. सो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 100. ओके, हमें 5 को क्या करना है? 20 से मल्टीप्लाई. सो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 100, राइट?
सो ए पार्ट इज, जो ए पार्ट था इसका क्वेश्चन का, दैट इज हाउ मेनी फैमिलीज डिड आरिफ क्लास क्वेश्चन। आरिफ की क्लास के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कितनी फैमिलीज से क्वेश्चंस किए थे? सो द आंसर इज 100. Second is how many of the families only boil water. So for this one we have to understand the circle first of all. ये सर्कल क्या है? ये सर्कल जो है पाई चार्ट, राइट? और इस पाई चार्ट को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये क्या हो रहा है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो 4 इक्वल पार्ट्स जो है ये क्या शो करेंगे? कुछ नंबर ऑफ पीपल, या यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज शो करेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आर 100. 100 क्या थी? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। सो ये जो कंप्लीट सर्कल है वो किसको शो करेगा? 100 को. बट दिस फोर्थ पार्ट विल बी शो 25 families. Each part is for 25 families. एंड ये कैसे आया? हमने क्या किया है? इस 100 को 4 से डिवाइड दिया, और जब हम इसे डिवाइड देंगे विल गेट 25. सो ईच पोर्शन विल शो 25 फैमिलीज. अब ये पूछ रहा है बॉइल वाटर, बॉइल वाटर में कितनी फैमिलीज आ रही? सो बॉइल वाटर कहाँ है? दिस 1/4 पार्ट, और 1/4 पार्ट किसको शो कर रहा है? 25 फैमिलीज को. सो द आंसर इज 25 families. Okay. In C part, how many only use filters? अब सिर्फ फिल्टर्स वाले कौन है? सिर्फ फिल्टर्स वाले ये है. सो दीज कंप्लीट सेक्शन, अब ये क्या है? एक कंप्लीट सेक्शन है, एंड यहाँ हमने क्या लिए थे? 1/4 एंड 1/4 पार्ट. तो अगर हम इस कंप्लीट सेक्शन को लें, ये जो सर्कल का हाफ पोर्शन है, राइट? सो हाउ मेनी फैमिलीज डज इट शो? 25 प्लस 25 कितनी फैमिलीज हो जाएगी? 50 फैमिलीज. दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट. यहाँ जो ये पोर्शन है इसमें क्या होगी? 50 फैमिलीज होगी. देन एट लास्ट डी पार्ट इज हाउ मेनी बॉइल वाटर एंड यूज फिल्टर्स. सो बॉइल वाटर और यूज फिल्टर के लिए का है अगेन द 1/4 पार्ट, और 1/4 पार्ट में कितनी फैमिलीज है? 25. सो अगेन द आंसर इज 25 families. Now children, this question you have to do in your notebook. आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे इन द डैश फॉर्म. यू विल मेक दिस पाई चार्ट इन योर नोटबुक एंड you will write A, B, C, D questions and then write their answers like this. Question number 9 is a swimming club has 240 members. 60 of them like to swim on Saturday evenings, 120 on Sunday mornings and 60 on Sunday evenings. Make a pie chart to show this. Now this question also you have to do in your notebook. You will write the question in dash form and the solution is here. टोटल मेंबर्स आर 240 एंड स्विमिंग जो है सैटरडे इवनिंग को कितने मेंबर्स पसंद करते हैं? सैटरडे इवनिंग्स को स्विमिंग करना 60, ऑन संडे मॉर्निंग 120 एंड ऑन संडे इवनिंग 60 मेंबर्स लाइक टू स्विम. नाउ टू मेक द पाई चार्ट हमें क्या करना है? सबसे पहले इन नंबर्स को डिवाइड करना है. सो इफ आई डिवाइड दिस सर्कल into 4 equal parts, अगर हम इसको 4 equal parts में डिवाइड करते हैं सो क्या हो जाएगा? दिस विल बी 60, 60, 60 एंड 60. अगर हम इन सबको ऐड करेंगे विल गेट 240. और ये हमने कैसे किया? ये जो 240 था इसको हमने 4 से अगेन डिवाइड किया. सो जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा? 4 की टेबल में 240 60 टाइम्स आता है. सो ये जो है 4 इक्वल पार्ट्स जो होंगे दैट विल शो 60 मेंबर्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस नाउ 60 किस किस में आ रहा था? सैटरडे इवनिंग्स एंड संडे इवनिंग्स में आ रहा था. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 60 फॉर सैटरडे इवनिंग एंड दिस 60 फॉर संडे इवनिंग. Now this portion will be 120. How? Because यहाँ जब हमने इसको डिवाइड किया था there are 2 60s और 60 plus 60 कितना होता है? 120. एंड 120 में क्या है? संडे मॉर्निंग्स को जो स्विम करना पसंद करते हैं उनके लिए.
So you will write in this half portion 120 and Sunday mornings. So this is the pie chart for this question. You have to do two questions, question number 8 and question number 9 in your notebook. Rest you will do in your book. You don't have to do question number 10. So children, for homework you will do question number 6 and 7 in your book and question number 8 and 9 in your notebook. एंड जब आप पाई चार्ट बनाएंगे तो पाई चार्ट में आपको सर्कल जो ड्रॉ करना है वो आप कंपास से ड्रॉ करेंगे. ऑलराइट, थैंक यू.